CT practice test number 6. You are watching Vaishnav Pukhraj, biology with Vaishnav Pukhraj. So friends, students and teachers, let's start how to participate in CCT practice test number 6. Most students faces problem while participating in this CCT practice test number 6 because they unable to participate in this practice test due to lack of knowledge. So I just want to share the process how to participate in this test. So let's start. CCT practice test number 6. Actually, its full form is Creative and Critical Thinking Practice. Okay. CBSE has rolled out Creative and Critical Thinking Practice (CCT) practice since October 2019. But there is a problem due to the COVID-19. So now it commences in the month of July for class 6 to 10th. Okay. So let's watch the next slide. Actually, the time period to enroll in this test or to perform this test is July 7 to July 13, 2020. Okay, and when you apply the practice test in this platform, first you have to fill information like your name, your class, your school name, and your school UDICE. You can contact your class teacher for the school UDICE code. Okay, and for participating in this practice test, you have to aware about the time period of this test. The time period is 90 minutes, 1 hour 30 minutes. Total 30 question is there in 7 set. Okay, so this is also explained by the letter of the CBSE. And the main thing is school UDICE code. So you can get your school UDICE code by the help of your class teacher, and students also requested to screenshot after completion of this test, and you have to send the screenshot of the completion of the test to your class teacher. Okay, this is the link of participation. You just copy it and paste it in the Google. Okay, so simply it is HTTPS. Okay, just copy it and you paste it in the Google. Okay, so this is whenever you paste this, like this, ठीक है. तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, अल्टीमेटली इस तरीके का स्क्रीन ओपन होगा. ये स्क्रीन ओपन होगा. जब स्क्रीन को आप ओपन करेंगे तो आप वेट करिए, यहाँ पे ये पूरा कंप्लीटली ओपन होने दीजिए. ये ओपन जब हो जाएगा तो ये क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस सेट जो है वो ओपन हो जाएगा. उसके बाद में आप थोड़ा वेट करेंगे और वेट करने के बाद में आप देखेंगे कि इसको आगे ये वाला जो बटन है इसको आप प्रेस करेंगे तो ये आगे आ जाएगा. अबाउट द CCT प्रैक्टिस, द क्रिएटिव एंड क्रिटिकल प्रैक्टिस एक्सरसाइज एम टू द इंश्योर द स्टूडेंट एंगेज विद द इंटरेस्टिंग. दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड द थीम ऑफ द CCT प्रैक्टिस. ओके, फिर से इसको प्रेस करेंगे. अगेन इसको जब आप प्रेस करेंगे तो इसमें टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी. जैसे आप देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन दे रखी है. पार्टिसिपेंट मस्ट बी स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 to 10. पार्टिसिपेंट जो है वो 7 to 10 का स्टूडेंट होना चाहिए, लेकिन KVS के अंदर
क्लास 6 का स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकता है। A student can participate in the CCTV practice without filling any personal information. Only class and UDIS code भी is mandatory, यानी कि बाकी इन्फॉर्मेशन फिल करें ना करें, लेकिन आप KVS के स्टूडेंट को सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आपको नेम, क्लास, ओके, स्कूल नेम, UDIS कोड, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ओके, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो, और गार्जियन और पेरेंट्स का कंसेंट तो जरूरी है, उनके कंसेंट के आधार पे आप इस टेस्ट में अपीयर होंगे। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या है, पर्पज ऑफ कलेक्टिंग पार्टिसिपेटिंग इन्फॉर्मेशन, क्यों कलेक्ट करते हैं, ताकि बेसिक पार्टिसिपेशन इन्फॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट ऑफ CCTV प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लर्निंग एंड एनहांसमेंट। तो वो इसका मीनिंग रहता है, हु हैज एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन, पार्टिसिपेंट इन्फॉर्मेशन इज ओनली अवेलेबल विद CBSE एक्सेस कर सकता है। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है बेटा, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपेशन जेंडर जो है, अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन मेल फिल कर देते हैं, ओके, मेल, और उसके बाद में आप ध्यान देंगे पार्टिसिपेशन क्लास है, तो पार्टिसिपेशन क्लास जैसे 8 फिल कर देते हैं। यूडाइस कोड अपने क्लास टीचर से आप पूछिएगा और यहाँ पे जो भी यूडाइस कोड है वो फिल करेंगे। उसके बाद में पार्टिसिपेटेड स्कूल नेम, जैसे आप केंद्रीय विद्यालय से हैं, मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय ब्यावर लिखते हैं तो केंद्रीय विद्यालय यहाँ ब्यावर लिखेंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट के अंदर यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखिए, हिंदी है तो हिंदी लिखिए। इस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट बटन क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज व्हाट, यू हैव टोटल 90 मिनट, जैसे आपको बताया था 1 आवर 30 मिनट्स इसके अंदर रहता है। 7 यूनिट्स हैं और उसके अंदर टोटल 30 क्वेश्चन हैं और द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच यूनिट विल बी डिस्प्लेड फर्स्ट, सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी और ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क, हर क्वेश्चन का मार्क कितना है 1 मार्क है, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, वहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने, केयरफुली रीड करना है और उसके आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, अगर आपको जैसे ये डू नॉट क्लिक ऑन दिस मेनू, यहाँ पे क्लिक बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ क्लिक करेंगे आप, जैसे एरो जो आप बता रहा है वहाँ आपका कंप्लीट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो सेपरेटली। ये काउंटडाउन टाइमर दे रखा है, यानी कि यहाँ पर आपको 90 मिनट्स आते रहेंगे, 90 मिनट्स में ये पेपर कंप्लीट करना है। क्लिक है टू एक्सपेंड द क्वेश्चन, यहाँ क्लिक करोगे तो क्वेश्चन एक्सपेंड होगा, ओके, और क्लिक है टू द एनलार्ज द इमेज, अगर कोई इमेज है क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ से उसको एनलार्ज किया जा सकता है। क्लिक ऑन दिस बटन टू गो द प्रीवियस, ये प्रीवियस क्वेश्चन के लिए है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है, और क्लिक ऑन दिस बटन टू डी सेलेक्ट द मार्क आंसर, यानी कि आपको मार्क सेलेक्ट कैसे करना, जैसे ये आंसर है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बी आंसर है तो बी पे क्लिक करेंगे, सी आंसर है तो सी पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। द क्विज विल बिगिन व्हेन यू क्लिक नेक्स्ट, अब जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करोगे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे यूनिट 1 दे रखा है पेन ड्राइव, इसमें फिर से आगे क्लिक कीजिए। ये देखिए, थोड़ा वेट करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो, अब जैसे इमेज है, इमेज पे आप पूरा क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक, ये देखिए ये आ गया है, ये आपको इमेज नहीं दिखाई दे रही है, इस इमेज को आपको पूरा देखना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ये इमेज पूरी आ गई। तो आप यहाँ से इमेज को कंप्लीटली रीड कर सकते हैं कि इमेज में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद में इसको वापस से क्लिक करेंगे, ये मिनिमाइज हो जाएगा, क्वेश्चन को यहाँ से आप कंप्लीट पढ़ लेंगे और ये आपके आंसर है। सपोज मान लीजिए बी आंसर है तो आप बी को जस्ट इस तरीके से क्लिक कीजिए तो बी आंसर आपका टिक हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने बी गलती से टिक कर दिया और आपको सी टिक करना है तो वापस आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो ये अनक्लिक हो जाएगा, फिर आप वापस उसको सी क्लिक कर सकते हैं अगर गलती से हो गया। तो इस तरीके से आप ये क्लिकिंग करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आप देखेंगे, हर क्वेश्चन को अटेंड करते हुए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर से इसकी इमेज आपको देखनी है, इमेज देखनी है तो इमेज को एक्सपेंड कीजिए, यहाँ से आप इमेज को एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड करने के बाद में आप इमेज को कंप्लीटली रीड कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर दीजिए। मान लीजिए इसका ए आंसर है तो इसको ए को क्लिक करेंगे, ए क्लिक हो जाएगा, नेक्स्ट आप नेक्स्ट पे आ जाओगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप नेक्स्ट चलते रहेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन है और ये सेकेंड यूनिट हो गई। टोटल यूनिट अब बताया था मैंने, इसके 7 यूनिट्स के अंदर आपका 30 क्वेश्चन दे रखे, तो आप नेक्स्ट बाय नेक्स्ट इसको करते रहेंगे। आप कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, बाद में करना चाहते हैं तो प्रीवियस वाला बटन भी दबा सकते हैं और वापस नेक्स्ट पे भी आ सकते हैं।
इस तरीके से आपको चलना है और आप अलग अलग यूनिट्स को अटेंड करते हुए ये पैराग्राफ भी पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएंगे वो इस पैराग्राफ के बेस पे होंगे और पैराग्राफ के बेस पे आप क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है अलग अलग जो 10 यूनिट थर्ड हो गया, फिर ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को जो है रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप आगे से आगे चलते रहेंगे, पैराग्राफ पढ़ते रहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते रहेंगे। तो टोटल जो 7 यूनिट्स है उसके अंदर आप चलते रहेंगे, क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। जब ये है, जैसे इसके अंदर आपका ए है तो आप इसको ए को क्लिक कीजिए और आप नेक्स्ट चलते रहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइम भी देर का है कि अभी आपके पास में 1 आवर 27 मिनट्स है। तो आप टाइम को भी नोट कर सकते हैं कि आपके पास में कितना टाइम बचा है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है टेस्ट को अटेंड कर सकते हो। सो ये 23 आ गया, ये 24 आ गया, आपको क्लिक करना है। ये 25 का आगे जो है पैराग्राफ रीड करना है, फिर 25 का ये जो क्वेश्चन है वो देखना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि इसको आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे करते रहेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते रहेंगे, तो आपके क्वेश्चंस जो है वो क्लियर होते रहेंगे। ये 28 आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 आ गया और ये 30 आ गया। नाउ स्टूडेंट, जैसे ही आप नेक्स्ट अब क्लिक करेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ये स्क्रीन आ गया है जिसमें ये देर का है कि आपने जो कितने क्वेश्चन को अटेंड किया है, उस क्वेश्चन का देर का है कि क्वेश्चन आपने कितने अटेंड किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और ये देखिए स्क्रीनशॉट लेना है, आपका स्कोर कितना बना है, आपने कितने टाइम में अटेंड किया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने क्लास टीचर को आपको सेंड करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना है। सो गुड डे टू ऑल एंड गुड डे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप डेफिनेटली वीडियो लेक्चर को लाइक करें और चैनल वैष्णव पुखराज, बायोलॉजी विद वैष्णव पुखराज को सब्सक्राइब करें और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। सो गुड डे टू ऑल, गुड डे स्टूडेंट।